السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ریمائنڈر جز 15 سبحان الذی، پارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی، اور جز میں سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سورۃ الاسراء ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں کہ یہ اسراء اور معراج یہ ایکچولی میں اٹ ہیپن، یہ ہوا تھا، اور اینجل جبرائیل آئے تھے اور وہ لے کے گئے، جو براق کر کے، جو ڈونکی سے تھوڑا سا بڑا اور میول سے تھوڑا سا چھوٹا، اس پہ ماؤنٹ کرے، اس پہ بیٹھے اور گئے۔ اور یہ چیپٹر جو سورہ ہے سورۃ الاسراء، اس کو سورۃ البنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ نائٹ جرنی کے بارے میں ہے، رات میں جو آپ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مکہ کی بات ہے، اور مکہ میں پرسیکیوشن بہت زیادہ تشدد ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی، اور یہ جرنی ہوا تھا مکہ سے لے کے جیروسلم، اور ایک رات میں ہوا تھا، اور یہ سٹارٹنگ میں ہی سبحان الذی سے شروع ہوتا ہے، تو اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، اور اس میں کتنے سارے باتیں جو بتائے گئے ہیں، بنی اسرائیل کے بارے میں بہت سارے اس میں باتیں آئیں گے۔ اور سورۃ الاسراء، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے تو آپ ڈیفرنٹ پروفٹ سے ملتے ہر لیول پہ، اور امامت کراتے آپ، کیونکہ آپ خاتمی النبیین ہیں، اور آپ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا درجہ دیے، اور آپ امامت کرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 نمازیں ملی، جو ایک لانگر حدیث ہے جس میں 50 سے 5 کرائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، پھر 5 کے بعد کہنے لگے کہ نہیں، میں اب نہیں کراؤں گا اور کم، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اینڈ آفٹر دیٹ جو سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانے سے ملے، اور وہ جو رات میں پڑھ لے تو آپ کے لیے کافی ہے، شیطان سے آپ پروٹیکشن میں رہیں گے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ڈیفرنٹ پروفٹ سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ یہاں کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، لیکن اس میں بالکل خالی ہے، تو اس کے لیے کلمات ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بولنے میں ہلکے اور میزان میں وزن ہوں گے، یہ ڈے آف ججمنٹ میں بہت زیادہ وزن ہوں گے۔ اور یہ جب ہم اسراء اور معراج کا واقعہ دیکھتے ہیں، یہ مائگریشن ہے، اور اسی واقعے کے بعد جب یہ ابو بکر صدیق کے سامنے یہ بات آئی، تو ان سے کہا گیا کہ دیکھیے ایک رات میں یہ مسجد الاقصیٰ سے مسجد الحرام ایک رات میں گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں گئے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ تو اس کے بعد یہ، کیونکہ ہم غیب پہ ایمان لاتے، قرآن بالکل سچی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم کو جو بات بتائی گئی ہے ہم اتباع سننا کرنا ہے۔ اور پھر اس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس بات سے بہت شیکی ہو جاتے کہ نہیں وہ نہیں گئے تھے، ان کا بیڈ بالکل گرم ہی تھا، وہ گئے بھی اور واپس بھی آئے، یہ میریکلس چیز تھی، ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر ہم اس میں سورۃ الاسراء میں بنی اسرائیل میں یہ سیکھتے کہ جب تم اچھا کرو گے، احسن تم فی انفسکم، تم اچھا کریں تو تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے راستے پہ، جیسے ہم اہدینا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے ہم دعا کیے تھے، تو یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ تو یہ تو سیدھا راستہ ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا، ہمارا جو اعمال نامہ ہے کھلا نشر کیا جائے گا، جو جو کر کے آئے وہ ہمارے گلے میں شگون ہے، وہ ایک چھوٹی سی ہمارے چپ ہے جو پورا اس کے اندر ڈیٹا ہے، اور لیولز جتنے آپ جتنی گڈ ڈیڈ کریں گے اس لحاظ سے آپ کو جنت ملیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسا رمضان میں ہم روزے رکھتے تو وہ باب الریان، ایک دروازے کا نام کیا ہے، ریان۔ اور پھر عبادت کی بات ہوئی، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کے اچھے اچھے نام لے کے اللہ سے عبادت کرنا ہے۔ پھر ہم دعا سیکھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور بہت زیادہ اسراف نہیں کرنا ہے، اسراف کرنے والے شیطان
शैतान के भाई है, और इतना स्पेंड थ्रिफ्ट भी नहीं होना कि कंजूसी भी नहीं करना है। तो अल्लाह ताला बोले दरमियानी रास्ता करो, और फॉर्निकेशन मत करो, बुरे बातें करना, बुरे अल्फाज करना, अपने आँखों को भी उससे बुरे चीज़ें देखने से छुपाना है, और कानों को भी बुरे बातें सुनने से, और दिल को भी बचाना है। और फिर अच्छे रास्ते पे चलना है, नॉलेज गेन करना है, और रेजरेक्शन मतलब आखिरत पे यकीन करना है। सबसे अच्छा क्या है, जो अच्छी बात। लेकिन शैतान क्या करता, आपके दिलों में विस्पर्स डालता, बुरे बातें डालता, और शैतान के टैक्टिक्स है। सूरतुल इसरा में देखते हैं कि किस तरह वो टैक्टिक्स करता। और कुरान क्या है, फजर के टाइम मशहूद होगा। तो इसमें उलमा बताते हैं जो हम कुरान पढ़ते हैं फजर की नमाज में, फर्ज नमाज में, तो लंबी खिरत करना चाहिए, और वैसे भी जो हम क़राअतुल कुरान करते हैं सुबह में, लंबी करना चाहिए। फिर दुआ आती है इसमें, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानिन नसीर। तो अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अच्छा एग्जिट हो, अच्छा एंट्रेंस हो, और हम ट्रूथफुल हो, और हमारे लिए नसीर आप है। फिर सूरतुल कहफ, सूरतुल कहफ क्या है, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक आपके लिए लाइट प्रोवाइड करती सूरतुल कहफ में। और सूरतुल कहफ जो अगर फर्स्ट 10 आयाज या लास्ट 10 आयाज आप मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके लिए इनफ है, और दज्जाल से आप प्रोटेक्शन में रहेंगे। दज्जाल का फितना जब आखिरत शुरू होंगी, तो दज्जाल का फितना सबसे बदतरीन रहेगा, और उसके लिए बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ जब आप ये सूरतुल कहफ मेमोराइज करेंगे, उससे बच जाएंगे। और लाइट चाहिए हम लोग को, क्योंकि उस दिन बहुत अंधेरे होंगे डे ऑफ जजमेंट में। और एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे, ये ऑथेंटिक नरेशन है। और सूरतुल कहफ में हम देखते हैं 4 स्टोरीज रहेंगे इसमें। एक जो पहली स्टोरी होती ना नौजवानों के बारे में, यंगस्टर्स, उन लोग क्या करते, माइग्रेट करते। कहफ मतलब जो केव को बोलते हैं, और ये केव ऐसा पहाड़ में बनी हुई रहती है केव। तो इसमें पहला जो वाकया आता, बताते कि जो यंगस्टर्स तौहीद के लिए बोलते कि हम शिरक नहीं करेंगे, और वो क्या है, असहाबुल कहफ, वो कंपेनियंस ऑफ कहफ है। अब वहां पर वो पना लेते, घर छोड़ देते, और जब यंग रहते ना, आपके अंदर बहुत एनर्जी भी रहती, और वो काम कर लेते जब आप एक सर्टेन एज के बाद। बताता कि फतेह मतलब 19 या 20-21 ईयर्स के वेरी यंग एज में थे इन लोग। तो नॉट ओनली दे लेफ्ट होम, वो घर भी छोड़े, साथ में दुआ भी करे, और अल्लाह ताला उनको कई साल तक सुलाते रहे। उनके साथ कुत्ता भी था, वो ट्विस्ट एंड टर्न कराते थे अल्लाह ताला। सूरज का जो डायरेक्शन था ना, उसको भी चेंज करते थे अल्लाह ताला, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अपनी वो थी, एक मिरेकल बताना चाह रहे थे। और ये बताना चाह रहे थे कि अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते। कई साल तक वो ऐसे ही रहे, फिर उसके बाद वो उठे, और फिर वो बाजार गए कुछ लेने के लिए, और फिर उनका जो खात्मा हो गया। और उसके ऊपर फिर लोग बोलते कि अच्छा हम यहाँ पर कोई मस्जिद बनाएंगे या क्या करेंगे, वो सारी बातें आते। और फिर जो कहफ के किस्से में बोलते कि कुत्ता भी उनके साथ था, तो बहुत सारे लोग सोचते कि हम कुत्ता रख सकते आउटसाइड सिक्योरिटी के लिए, जैसे आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं, या कोई सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आउटसाइड द होम। वो सिर्फ और एक एक्सेप्शन है, नॉट एट होम। और फिर यहाँ पर कंपेनियन ऑफ केव, दो जो कहफ वाले हैं, ये पहला वाकया था। और फिर दूसरा, फिर उन लोग किस तरह दुआ करे अल्लाह का, रब्बना आतिना मिन लदुन का रहमता व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। तो हम भी अल्लाह से दुआ करना चाहिए। और एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी अस्तहदिका लि अरशदा अमरी व आऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं एक्स्ट्रा, कि अल्लाह ताला मुझे अपने नफ्स के शर से भी बचाए। तो अब ये पहला वाकया। दूसरा क्या है, दूसरा जो गार्डन के बारे में, जो 2 गार्डन थे उनके, 2 बागात थे, और वो ओन करते थे। तो उनके साथ एक साथी भी था जो अच्छी बात याद दिलाने के लिए। देखिए, एक अच्छा राइचियस साथी भी चाहिए, एक साले सोबत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंसान तो बहुत तकब्बुर में था, बहुत अपने पैसे का घमंड था उसको। और तो दूसरा जो उनका साथी था, उसने याद दिलाया कि देखो ये तुम्हारे जो बागात है ना, ये अल्लाह की तरफ से है। तुम जब बाग में एंटर हुए, माशाअल्लाह ला कुव्वता बोलना चाहिए। और अल्लाह ताला हमको हकीर पानी से, नुतफे से बनाए, और
उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बोस्टफुल होता, बोलता कि नहीं मुझे यहाँ पर मिला तो वहाँ पर भी मिलेगा, तो उसकी ये गलत फहमी रहती। तो अल्लाह ताला फिर उसके बाग को पूरा गर्क कर देते। फिर तीसरी जो स्टोरी आती वो खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में आती, और वो नॉलेज के बारे में है। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते कि व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमल बहरैनी औ अमदिया हुकुबा, बोलते कि मैं कितना भी टाइम लगो मैं ट्रैवल करूंगा और नॉलेज गेन करूंगा। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम जब नॉलेज गेन करने के लिए खजर के पास गए, खजर अलैहिस्सलाम के लिए, क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला आपसे पूछे थे मूसा अलैहिस्सलाम से कि किसके पास ज्यादा इल्म है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास। तो आप, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला ने उनको इन्फॉर्म किया, नहीं आपसे भी ज्यादा किसी के पास इल्म है, वो है खजर, आप उनके पास जाओ। तो फिर वो जाते, ट्रैवल करते, अपने जो स्टूडेंट है उनका, या कोई बोलते स्टूडेंट है या सर्वेंट है, यूशब बिन नून को साथ लेके जाते, और फिर उनके पास एक पकी हुई मछली रहती। और इंसिडेंट में एक ये रहता कि जब वो मछली पानी में जाएंगी तभी वो रहेगा पॉइंटिंग मीटिंग पॉइंट रहता। तो जब वो आगे बढ़ जाते और बोलते कि मेरा नाश्ता लाओ, तो बोलते कि नहीं वो मछली तो वहीं का, बोलते तो वही तो था। तो दे वेंट बैक। फिर वहां पर हम ये सीखते हैं कि एटिकेट्स, एक टीचर और स्टूडेंट के, वो डांटते नहीं उनको। और फिर वहां पर इनके स्टूडेंट चले जाते, और मूसा अलैहिस्सलाम और खजर का वहां से जर्नी कंटिन्यू होता। तो इल्म की बहुत ज्यादा अहमियत है। हम इल्म के लिए निकलने पर जन्नत का रास्ता आसान होता है। मन सलका तरीक़न, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर तुम इल्म के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो शख्स उसूल इल्म के रास्ते पर चलता है, अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। तो हम जब इल्म के लिए जो भी रास्ता, अब देखिए फिजिकली हम रास्ता तय नहीं कर रहे हैं, हम घर में हैं, लर्न कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसको अच्छा अजर देने वाले हैं, दुनिया में भी इसकी कामयाबी है एंड आखिरत में भी। तो हम यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से सीखते कि किस तरह, लेकिन एक चीज इसमें ये थी, जब बिफोर स्टार्टिंग जर्नी मूसा अलैहिस्सलाम को खिजर अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि देखो सब्र रखना है, कोई भी चीज मैं कर रहा हूँ तो पूछना नहीं है कि क्यों। अब एक के बाद एक इंसिडेंट होता, जब वो निकलते आगे बढ़ते तो एक कश्ती में सुराख कर देते, बोलते कि अरे ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम कश्ती खराब कर दिए। तो आप खिजर फरमाते, मैंने कहा नहीं था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे, एंड देन मूव ऑन करते। फिर एक लड़के को कत्ल कर देते। तो बोलते ये तो कितनी बुरी हरकत की तुमने। तो बोलते कि मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। अब फिर यहाँ तक की स्टोरी रहती, नेक्स्ट जो आगे स्टोरी जुज नंबर 16 में, तो यहाँ पर हम सीखे कि नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूथ से हम सीखे कि वो लोग तौहीद के लिए निकले और दुआ भी करें। और बाग के किस्से से हम सीखते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर दिया तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर, हाँ उसकी शर्त यह है कि आप शुक्र गुजार होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन।